Hello everyone, welcome to the channel. In previous video, we started with the topic input in Java and covered input data by function argument. So today we will study second method to input data in Java, that is input stream reader class. So let's start with this input stream reader class. So to use this class we have two steps. Okay, so first step is you have to import java.io.asterisk package. Second is in the main function you have to create objects of two classes, that is first class is input stream reader class and this is the object of this class, and second class is buffered reader and in is the object of this buffered reader class. And you have to see this object and you have to pass this object here. Okay, same name should be there, and these objects name like read, I have taken here read and here in. The objects name read and in can be any word as per your choice. आप अपनी choice से कोई भी ये नाम रख सकते हैं, but throughout the program आपको वही नाम use करने हैं. So to use this class input stream reader, let's see the syntax how to accept numeric values with this class. So पहला है आपने कोई भी numeric value अगर enter करानी है with the help of this class, तो आपको एक appropriate message देना पड़ेगा user को. system.out.println आपने print कराया enter a number, तो integer अगर enter कराना है तो क्या लिखना पड़ेगा, and I have taken here any integer variable. What you have to write, integer dot parseInt in dot readline. What is in here? In is this buffered reader class object. Okay. Next, if you want to enter any float number, so what you have to print, system.out.println enter a decimal number. This message will display to the user, and what syntax you will use, float dot parse float in dot readline. Okay. In the similar way आपको अगर कोई डबल वैल्यू स्टोर करानी है तो आप कैसे स्टोर कराएंगे, डबल डॉट पार्स डबल इन डॉट रीड लाइन. अगर आपको कोई कैरेक्टर एंटर कराना है तो उसका सिंटेक्स क्या हो जाता है, आपने एक वेरिएबल ले लिया कैर सी, एंटर अ कैरेक्टर एंड दिस वुड बी द सिंटेक्स टू एंटर लाइक कैर and in brackets in dot read. In the similar way अगर आपको कोई string enter करानी है तो कैसे लिखेंगे हम, आपने एक string variable ले लिया string s, enter a string and this is the pretty simple s equals to in dot readline. So this is the syntax to input data with the help of input stream reader class. So let's see the quick example of this class. First step was to import java.io.asterisk package. So this package you have to import in your program to use this class. Okay, public static void main, और इधर आपको throws io exception लिखना ही पड़ेगा. ये क्या करता है throws io exception, ये कोई भी io means input output exception, exception means any error, कोई भी एरर होती है आपके इनपुट आउटपुट में तो उसको आपको क्लियर मैसेज देता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा थ्रोज io एक्सेप्शन. इधर मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए इंट फ्लोट डबल कैर एस. हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इनको कैसे एंटर कराना है, कैसे यूजर को मैसेज प्रिंट कराना है. तो सेकंड स्टेप में क्या था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमें इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं. तो इधर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक रीड लिया है और यही रीड इधर पास हुआ है. ठीक है, और बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना लिया इन. तो सबसे पहला देख लेते हैं, एंटर एनी इंटीजर एंटर कराना है तो इंटीजर डॉट पार्सेंट इन डॉट रीड लाइन. अगर कोई डेसिमल
कराना है float तो float डॉट पार्स फ्लोट इन डॉट रीड लाइन, डेसिमल बिग कोई बिग डेसिमल नंबर कराना है तो डबल हम यूज करते हैं, और कोई भी स्ट्रिंग यूज कर एंटर करानी है तो हम सिंपल क्या लिखते हैं इन डॉट रीड लाइन। तो देख लेते हैं इसका आउटपुट। लेट्स कंपाइल इट एंड सी हेयर, ये मैसेज प्रिंट हो रहा है एंटर एनी नंबर जो हमने इधर लिखा था। ठीक है, देखो एंटर एनी इंटीजर, ये ठीक है। तो इंटीजर एंटर कराना है इधर, सपोज मैंने 2 लिख दिया, एंटर इट, एंटर एनी डेसिमल नंबर 3.4 सपोज करो, तो एक बड़ा डेसिमल नंबर अब प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब एंटर एनी स्ट्रिंग, लास्ट में हमने क्या पूछा है, तो ये सब हमने एंटर करा लिया। ठीक है, तो ये सिंपल था कि कैसे सिंटेक्स को यूज करना है। ठीक है, एंड let's see one more example of swapping with the help of this input stream reader class. तो सबसे पहले again import कराना IO package, and what is the program? Write a program to input two unequal numbers. Display the numbers after swapping their values in the variables without using third variable. हमें क्या करना है, दो अनइक्वल इनपुट कराना है नंबर और उनका स्वैपिंग करना है। फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 15 है, तो आउटपुट में क्या आ जाए, a की वैल्यू 15 हो जाए एंड b की वैल्यू 10, मतलब स्वैपिंग हो गए नंबर्स की विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन थ्रोज IO एक्सेप्शन, इधर दो वेरिएबल ले लिए जिनकी वैल्यू हम इनपुट कराएंगे। तो इधर इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर रीडर का ऑब्जेक्ट्स बना लेना है। नेक्स्ट क्या है, हम यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, मतलब ए की वैल्यू आप एंटर करेंगे। तो इधर हमने इंटीजर लिया है तो इंटीजर डॉट पार्सिंट, एंटर सेकंड नंबर, तो अगेन ये भी इंटीजर है तो इंटीजर डॉट पार्सिंट इन डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब इस वाले स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम ए और बी की वैल्यू एज इट इज प्रिंट करा रहे हैं कि यूजर ने क्या एंटर करी है ए और बी की वैल्यू। उसके बाद जो लॉजिक आता है स्वैपिंग का वो है ये 3 लाइन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल इधर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, b इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू यूजर ने एंटर करी 2, तो b की वैल्यू क्या एंटर करी 3 सपोज, फॉर एग्जाम्पल। देन ये स्टेटमेंट क्या देगा, b इक्वल्स टू a प्लस बी क्या दे देगा, भाई a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू 3, तो b में क्या आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, a इक्वल्स टू b माइनस a इक्वल्स टू b की वैल्यू अब क्या हो गई 5। ठीक है भाई, ऊपर वाले स्टेटमेंट से 5 हो गई, 5 माइनस a, a की वैल्यू क्या है 2, तो अब a में क्या स्टोर हो गया 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, b इक्वल्स टू b माइनस a, b में क्या स्टोर हो जाए, b की वैल्यू क्या है 5 माइनस a, अब a की वैल्यू ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या हो गई 3, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब देख सकते हैं a की वैल्यू क्या थी पहले 2, देन b की वैल्यू क्या थी 3, लेकिन अब इन दो स्टेटमेंट्स के बाद क्या होगी, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2। ठीक है, एंड सिंपल लास्ट में क्या प्रिंट करा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इज अ सिंपल प्रिंट टाइप। तो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं एक बार। Let's enter the first number, suppose enter second number 3, just see this, the value of a is 2 and b is 3, and after swapping the value of a becomes 3 and value of b becomes 2. Okay, and that logic I have shown to you. So this was our input stream reader class. So next class will be your
scanner class. That is third method to input data in Java. Till then, you practice this, and thank you for watching the video.